Question number 6. This question is from ionic equilibrium, and in past 2-3 years this type of question is asked in JEE Advanced. This question is regarding effect of pH on solubility. On decreasing the pH from 7 to 2, the solubility of sparingly soluble salt Mx of a weak acid Hx increased from 10 to the power minus 4 mole per liter to 10 to the power minus 3 mole per liter. The pKa of Hx is. So here Mx in solid state is in equilibrium with M plus in aqueous state and X minus in aqueous state. Since pH is equal to 7, it means that there is no hydrolysis or there is no effect of pH on the solubility of this. So जब pH 7 दे रखा है इसका मतलब Mx का saturated solution है, तो here I can write that Ksp is equal to solubility square. The value of solubility at pH 7 is given, that is 10 to the power minus 4. तो मुझे ये पता चल गया कि what is the value of Ksp. Ksp is 10 to the power minus 8. Now if I am adding some acid, I am decreasing the pH. तो क्योंकि यहाँ पे anion weak acid का है, H plus add करने पे anion will combine with X minus will combine with H plus, and this reaction will move more in forward direction because the equilibrium constant of this reaction is 1 upon Ka. Ka is smaller because it is a weak acid. तो ये जो second reaction है, it will go almost to completion. So if I add these two, now I am discussing that what is the effect on solubility on changing the pH of the solution. If I add these two, this is equilibrium constant Ksp and this is 1 upon K. जब हम दो reversible reactions को add करते हैं तो equilibrium constant multiply हो जाता है. तो ये जो net reaction है इसका equilibrium constant है Ksp upon Ka. और हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो मेटल आयन है वो तो मेटल सल्फाइड से आ रहा है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सॉलिबिलिटी. बट जितना भी X माइनस है उसका ज़्यादातर पार्ट अब HX के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज दिस रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन. तो जितना भी X माइनस सॉलिबिलिटी से आया था ये पूरा H प्लस से कंबाइन होकर HX के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. दैट्स वाई this is equal to solubility and this is also equals to solubility क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ आ गया. And this is solid, so solid is there, it will not come in the equilibrium term. And H plus आयन का concentration system में already finally दे रखा है कि that is equal to 10 to the power minus 2. pH is 2 means H plus is 10 to the power minus 2. So equilibrium constant Ksp upon K is equal to solubility square upon H plus ion concentration which is 10 to the power minus 2. हमें K की वैल्यू निकालनी है. So from here we can write that K is equal to Ksp into 10 to the power minus 2 upon solubility. They have said that solubility increased to 10 to the power minus 3. So 10 to the power minus 3 whole square. Ksp we already know 10 to the power minus 8, so 10 to the power minus 10. 10 to the power minus 10 upon 10 to the power minus 6 will be 10 to the power minus 4. So K is 10 to the power minus 4 means pK minus log Ka will be 4. So the answer for question number 6 should be B. तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी JEE एडवांस में आए हैं, इफेक्ट ऑफ pH ऑन सॉलिबिलिटी. The question number 7. In the given reaction scheme, P is a phenyl alkyl ether. हमें अल्काइल डिफाइन नहीं किया है, ज़रूरत भी नहीं है. इट कुड बी एनी फिनाइल अल्काइल ईथर, लेट इट बी PHOR. जब इसकी रिएक्शन HI से कराई जाएगी तो ये ईथर लिंकेज ब्रेक होगा. यू विल गेट फिनॉल एंड यू विल गेट RI. अब ये जो फिनॉल है ये आपका Q है. इस फिनॉल की रिएक्शन इन्होंने आगे कराई है विथ NaOH फर्स्ट, देन CO2 एंड देन हाइड्रोलिसिस. ये बहुत फेमस रिएक्शन, अगेन इम्पॉर्टेंट, लेट मी रिमाइंड यू, ये है कोलबेज रिएक्शन. कोलबे-श्मिट भी कहते हैं इसे, अदरवाइज इट इज कोलबेज रिएक्शन. एंड यू विल गेट OH, COOH. This is our R. It is called salicylic acid. What is it called? It is called salicylic acid. तो यहाँ आपको salicylic acid बनेगा.
अब इस सैलिसिलिक एसिड पर आगे रिएक्शन दी हुई है, एसिटाइलेशन करवाने का तैयारी है। आइए देखते हैं। OHCOOH इसकी रिएक्शन AC2O एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड से कराई गई है ना। फॉलोड बाय वाटर का क्या पर्पस है वो मैं बताती हूँ। AC2O में ये कराई है तो OCOCH3COOH बराबर, क्योंकि वाटर है तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि CO माइनस या इस तरीके से कुछ रहे। ओके, तो फॉलोड बाय H3O प्लस। अब इसमें आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस नहीं करा देंगे। एस्टर हाइड्रोलाइज होता है जब हीट दी होती, पानी डालने भर से एस्टर हाइड्रोलाइज नहीं हो जाएगा। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये S का स्ट्रक्चर है। ये हमारा S का स्ट्रक्चर है। अब ये जो S है ना, ये है एसिटाइल। क्या नाम है इसका ज़रा लिखा जाए। दिस इज कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक, इसी को आप बड़े फेमस एस्पिरिन नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये कंपाउंड एस्पिरिन नाम से भी कहलाता है। ये कहलाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब क्या बढ़िया शानदार, कहने को क्या सिंपल एस्पिरिन पे क्वेश्चन आया, लेकिन क्या इतना आसान है? इट प्राइमरीली इनहिबिट्स नॉरएड्रेनालिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसका, नॉरएड्रेनालिन वाला ये काम नहीं है। इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यस, दैट इज ट्रू। ये एनसीईआरटी का कटिंग है, यहाँ पर आप देखें। इट इज़ अ नॉन नार्कोटिक ड्रग। तो सी ऑप्शन आपका अपने आप गलत हो गया। इट इज़ अ नार्कोटिक ड्रग, नो। Aspirin and paracetamol belong to the class of non-narcotic analgesic. Aspirin is the most familiar example. Aspirin inhibits, read this line, aspirin inhibits the synthesis of chemicals known as prostaglandins, which stimulate inflammation in the tissue and cause pain. ये आंसर आ गया आपका B. These drugs are effective in relieving skeletal pain, such as that due to arthritis. These drugs have many other effects, such as reducing fever, antipyretic, and preventing platelet coagulation. Because of its anti-blood clotting action, aspirin finds use in prevention of heart attacks. ये पूरा पैराग्राफ अपन एनसीईआरटी से उठाए हैं। अब आपको लगेगा कि फिर ये डी वाला भी तो आंसर हो सकता है ना, ये तो ऑब्जेक्शन हो जाना चाहिए। नहीं, इट इज ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड वर्ड लिखा है। एसिटाइल शब्द क्या होता है? एसिटाइल होता है CH3CO, ये होता है ना एसिटाइल। ठीक, अब आप देखो, एसिटाइल बेंजोइक एसिड अगर हमें कहा जा रहा है तो वो ये है, ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड। ये है, ये नहीं है जो अपने रिएक्शन में तो एस्पिरिन बना है। यू गॉट माई पॉइंट कि बहुत ही क्लोज कॉल। काफ़ी लोग मुझे पूरा भरोसा है, ऑलमोस्ट 50% लोग जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डी ऑप्शन करके आए होंगे। ये एक पॉसिबल एरर है। ठीक, ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, नो इट इज नॉट ऑर्थो एसिटाइल, इट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7 is B. Okay? So section 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर है और इसमें देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. So let us go through question number 8. This question is a mixing of mole concept and that carbon family. So the question is, the stoichiometric reaction of 516 gram of dimethyl dichlorosilane with water result in tetrameric cyclic product X in 75% yield. The weight in gram of X obtained is the molar mass of hydrogen, carbon, oxygen, silicon and chlorine atoms are given. बहुत कॉमन रिएक्शन है, हम सिलिकॉन्स के बारे में जब पढ़ते हैं. सो दिस इज सिलेन, डाईमिथाइल सिलेन का मतलब ये है कि CH4 की जगह यहाँ SiH4 था और उसमें 2 हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन ग्रुप है. सो द नेम ऑफ दिस डाईमिथाइल सिलेन इज, दिस इज द कंपाउंड डाईमिथाइल सिलेन.
जैसे इथेन होता है वैसे ही सिलेन है, मीथेन होता है वैसे ही, राइट, मीथेन की तरह ये सिलेन है. So on hydrolysis of this is a nucleophilic substitution reaction. Chloride ion की जगह OH minus आ जाएगा. And I am assuming that 100% अगर yield है इस reaction की, so initially if I calculate कि ये जो compound है इसका mass दे रखा है, mass of this compound is 516, और मैं इसका molar mass calculate करूँ तो 28, दो क्लोरीन एटम का मास 71 और ये 15 plus 15 that is 30, so molar mass is 129. If I calculate what is the number of moles of dimethyl silane, it is 516 divided by 129 which is 4 moles. तो हम reaction 4 मोल से शुरू कर रहे हैं. Now when it will hydrolyze, it will form this compound, right? So dimethyl silane dihydroxide and 2 HCl molecules will be formed. Now this substance is subjected to polymerization. तो ये condensation polymerization है, इसमें से water molecule निकल जाएंगे, and they have mentioned that there is a formation of tetrameric cyclic product. So we know that कि जब ये दो इस तरह की यूनिट आपस में कंबाइन होगी तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ SOS बॉन्ड, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड, SiO-Si बॉन्ड. So this is the compound formed along with elimination of 4 water molecule. तो अगर हमने यहाँ से शुरुआत करी थी कि चार मॉलिक्यूल्स थे डाइमिथाइल सिलेन के, अगर 100% यील्ड होती तो यहाँ पे 4 मोल्स इसके फॉर्म्ड होते, और अगेन सेकेंड रिएक्शन में अगर 100% यील्ड होती तो फ्रॉम 4 मोल्स ऑफ दिस डाइहाइड्रोक्सी डाइमिथाइल सिलेन वी कैन फाइंड 4 moles of this compound, 1 mole of this compound, because 4 mole से polymerize होके 1 mole tetrameric cyclic product बन रहा है, तो इसका 1 mole बनता जब 100% एफिशिएंसी होती, बट अभी परसेंट यील्ड है 75%, तो 1 की जगह कितना बनेगा, 3/4 बनेगा, 75% ऑफ 1 mole बनेगा. So from here we got that experimentally the number of moles of X compound formed is 3/4. इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं. सिलिकॉन के 4 एटम्स है, 28 इंटू 4. CH3 के 8 ग्रुप्स हैं, सो 15 इंटू 8, एंड 4 ऑक्सीजन एटम है, सो 16 इंटू 4. अगर ऐड करते हैं तो दिस मोलर मास इज 296. 296 का 3/4, इफ आई मल्टीप्लाई 296 by 3/4 it is coming 222 grams. So answer for question number 8 is 222. So very good question. Mixing of inorganic and physical chemistry. Question number 9 ये simple question है, and it is based on gaseous state. Real gas से compressibility factor के ऊपर based question है. Let us try to solve this question. A gas has a compressibility factor of 0.5 and a molar volume of 0.4 decimeter cube per mole at a temperature of 800 Kelvin and a pressure x atm. If it shows ideal behavior at the same temperature and pressure, the molar volume will be y decimeter cube per mole. The value of x upon y is, the gas constant R is 8 into 10 to the power minus 2 liter atm per Kelvin per mole. तो पहले तो हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को लिखते हैं, Z इज इक्वल टू हाफ. अगर एक ही मोल है तो वॉल्यूम जो है वो मोलर वॉल्यूम है, PVM अपॉन RT, अदरवाइज PV अपॉन nRT. और आपको पता है कि जब हम ये इस तरह से लिखते हैं, वी आर कंपेयरिंग द वॉल्यूम व्हेन वी आर राइटिंग Z इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. जब हम लिख रहे हैं रियल और आइडियल गैस के वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर रियल गैस और आइडियल गैस के सेम होते हैं, तभी हम इस तरह से कंपेयर करते हैं वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. सो बेस्ड ऑन दिस फार्मूला आई कैन पुट द वैल्यू. प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, प्रेशर की वैल्यू हमने x atm मान ली है, और एक मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम दे हैव गिवन डेसीमीटर क्यूब मींस लीटर, 0.4 लीटर डिवाइडेड बाय r इज गिवन 0.08 और 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और टेम्परेचर है 800 केल्विन. सो बाई पुटिंग दिस आई कैन कैलकुलेट, अगर हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें तो 10 टू द पावर माइनस 2 और ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे. दिस इज 64. सो 64 और यहाँ 2 ऑलरेडी है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 64 अपॉन 0.8 विच इज इक्वल टू 80. सो द प्रेशर हियर is equal to 80 atm.
So the value of x is equal to 80. द सेकेंड पार्ट इज कि अगर आइडियल गैस होती तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं आइडियल गैस के लिए, या तो हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फ्रॉम देयर ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट दैट व्हाट इज द वॉल्यूम। तो एक तरीका ये है कि वॉल्यूम निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल वी आर कैलकुलेटिंग, आर वैल्यू इज गिवन 8 इंटू 10⁻⁻², टेम्परेचर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई प्रेशर, प्रेशर वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज इक्वल टू 80। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, सो दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स, और दिस वॉल्यूम इज कमिंग 0.8 डेसीमीटर क्यूब मीन्स 0.8 लीटर। या तो ये तरीका है, या आप ये वाला तरीका लगा लो कि Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ लिखा भी है कि 1 मोल और प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, सो फ्रॉम देयर वी नो Z इज हाफ, and volume of real gas we already know that is 0.1. So what is volume of ideal gas? 2 times of volume of real gas. From there also we'll get this value is equal to 0.8. तो y की वैल्यू आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द वैल्यू ऑफ x अपॉन y, x is equal to 80 and y is equal to 0.8. So 80 divided by 0.8 is equal to 100. So for question number 9 the answer is 100. ये रिलेटिवली एक सिंपल क्वेश्चन था फिजिकल से रिलेटेड। सो फिज़िकल के पोर्शन में दो क्वेश्चन थोड़े से बच्चों को डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। एक तो क्वेश्चन जो था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर यू कैन चेक, आई फॉरगेट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा अगर आपने सही पाथ फॉलो नहीं किया तो इट कैन बी लेंदी, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग द राइट पाथ देन दिस कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल। सो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और अर्हेनियस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ किया गया है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्लॉट ऑफ लॉग के एफ वर्सेज 1/T, के एफ का मतलब रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ए इन गैसियस स्टेट विल फॉर्म P in gaseous state is shown. ये ग्राफ दे रखा है log KF, तो लॉन और लॉग का ध्यान रखना होता है, राइट। तो लॉग मतलब बेस यहाँ पे 10 है, सो log KF वर्सेस 1/टेम्परेचर का ये ग्राफ है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सो फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। Pre-exponential factor for forward and backward reactions are given 10⁻15 per second, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 10⁻11 per second, फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाई फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे if the value of log K for the reaction is 500 Kelvin, if the value of log K for the reaction at 500 Kelvin is 6 and the value of log KB at 250 Kelvin is, तो हमें log KB की वैल्यू 250 केल्विन पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इन्होंने अर्हेनियस इक्वेशन को यूज़ किया है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन e⁻ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाई RT, ये अर्हेनियस इक्वेशन है। अगर मैं दोनों तरफ log लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि log, I'm not taking ln, I am taking log, right? So log KF is equal to log AF, और ये पहले ln होगा, ln को log में कन्वर्ट करने पे ये एक फैक्टर आएगा, that factor I can write here that this is equal to, अगर मैंने पहले यहाँ ln लिया दोनों तरफ तो this is ln KF, this is ln AF एंड दिस इज माइनस E/RT। इस लॉन को लॉग में कन्वर्ट किया तो 2.303 2.303 2.303 को राइट में लाएंगे तो ये 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, पर यहाँ डिनोमिनेटर में 2.303 आएगा, राइट। सो 2.303 इंटू टी। सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी हम अर्हेनियस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लॉग रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू लॉग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू RT। तो पहले
500 केल्विन पे, क्योंकि ये ग्राफ दे रखा है और ये इक्वेशन हमें पता है, इस पॉइंट पे the temperature is 500 because 1 upon 500 is 0.002, तो 500 केल्विन पे log kf की वैल्यू 9 है. सो इन दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं इस पॉइंट की, सो log kf इज 9 एंड af की वैल्यू दे रखी है 10 to the power 15, तो log af इज 15 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 2.303 आर, टेम्परेचर इज 500, तो यहाँ से हमने ये फॉरवर्ड अपॉन 2.303 आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली विच इज इक्वल टू 3000. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. At 500 Kelvin, the value of equilibrium constant is also given and equilibrium constant is K forward upon K backward. K forward की value हमें पता है, equilibrium constant they have given that log K is K equilibrium for the reaction at 500 Kelvin is 6. It means that equilibrium constant is 10 to the power 6. So equilibrium constant is K forward upon K backward. K forward we have already known from here. Log K forward is 9 means K forward is 9 10 to the power 9 at 500 Kelvin. तो यहाँ से Kb की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ Kb is 10 to the power 3. Once we got the value of Kb, we know the pre-exponential factor of backward reaction. I can put this value in this equation. तो अभी log Kb की वैल्यू 3 हो गई और log AB pre-exponential factor for backward reaction is 10 to the power 11. अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से अगेन 500 केल्विन पे वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EAB अपॉन 2.303 आर विच इज इक्वल टू 4000. अगर हमें बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पता चल गई, नाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट 250 केल्विन. अगेन इफ वी राइट दिस इक्वेशन, log K of backward reaction is log pre-exponential factor of backward reaction minus activation energy of backward reaction divided by 2.303 R into 250. Already we have calculated कि ये जो वैल्यू है EAB upon 2.303 R that is 4000 और AB की वैल्यू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. A and EA in Arrhenius equation is independent of temperature, तो ये वैल्यू सेम रहेगी, that is 10 to the power 11. So log AB is 11. So 11 minus 4000 divided by 250. If I divide 4000 by 250, it will be 16 times. So 11 minus 16 is minus 5. We have to calculate the modulus of log Kb which is equal to 5. तो अगर आपने जो डेटा दे रखा है उस हिसाब से अगर आप चलें तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है अगर आपका राइट पाथ है. अगर आपने कोई दूसरा फॉर्मूला लगाया या किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी तो ये क्वेश्चन लेंदी भी हो सकता है. सो क्वेश्चन नंबर 5 and question number 10, these two questions are a little bit difficult questions in this paper for physical chemistry. क्वेश्चन नंबर 11th, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से. So 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes 2 reversible processes A to B and B to C as shown in the given figure. So we are moving from A to B. A to B वाला जो process है, they have mentioned that A to B is an adiabatic process. A point पे हमें volume दे रखा है 10 मीटर क्यूब and temperature is equal to 600 Kelvin. इसी तरह से B point पे temperature we know 60 Kelvin, but we don't know what is the volume at point B, which is denoted by V2. Then from B to C, it is an isothermal process, isothermal reversible process. So they have given that if AB is adiabatic process, if the total heat absorbed in the entire process A to B and B to C is R into T2 ln 10, then the value of 2 log V3 is, use molar heat capacity of gas at constant pressure is 5R by 2. Cp की वैल्यू 5R by 2 मोनोएटॉमिक गैस के लिए दे रखी है. मतलब डायरेक्टली दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ गामा. गामा अगर Cp 5R by 2 है तो Cv 3R by 2, गामा is 5 by 3. So gamma minus 1 we can calculate, that is equal to 2 by 3. We are discussing first about this whole process A to B and B to C is the sum of process A to B and then B to C. तो A से B एडियाबेटिक है तो Q0 होगा, तो पूरे इस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा दैट इज इक्वल टू द एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन BC प्रोसेस.
हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. सो फ्रॉम देयर आई कैन राइट दैट Q in process B2C is equal to minus times of work done in B2C. B2C is isothermal reversible expansion. The work done in isothermal process B2C can be written as minus nRT ln V final upon V initial. We have to write the value of minus times of work done. So this minus and minus will become plus. So the heat energy exchange in A to B and B to C is equal to N is equal to 1 into R into temperature is T2, क्योंकि यहाँ पे temperature T2 है, गैस के number of moles 1 है. So I am writing that value ln V final. V final means V3 upon V2. So now this value is given. वी हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट इज द वॉल्यूम V2. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए BC प्रोसेस सिंस एडियाबेटिक रिवर्सिबल है, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला T1 V1 गामा माइनस 1 इज T2 V2 गामा माइनस 1. तो यहाँ T1 की वैल्यू 600 केल्विन है, V1 वी नो दैट V1 इज इक्वल टू 10, इसको बाद में हम पुट करते हैं. T2 की वैल्यू है 60 केल्विन एंड V2 टू द पावर 2/3. So V2 upon V1 to the power 2/3 is equal to 10, and from there we can write that V2 upon V1 is 10 to the power 3/2. V1 की value 10 meter cube है, so from there we get that the volume in meter cube V2 is equal to 10 to the power 3/2 into 10. So this is 10 to the power 5/2. So now if I am writing that what is Q in process A to B to C, that is equal to RT2 ln V3 upon V2. So this value they have given that this value is equal to RT2 ln 10. So if I compare here, I can write that V3 upon V2 is equal to 10. और V3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है क्योंकि V2 की वैल्यू हमें पता है, that is 10 to the power 5/2. So V3 will become 10 to the power 7/2, and now we can write the answer. The value of 2 log V3 is 2 log 10 to the power 7/2. 2 will cancel out. So this value is equal to 7. तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये डुएबल क्वेश्चन था. सो क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं, आप या तो कह सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स को मिला के, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू केमिकल इक्विलिब्रियम. In a 1 liter flask, 6 moles of A undergoes a reaction. A in gaseous state will form P in gaseous state. The progress of product formation of at two temperatures in Kelvin T1 and T2 is shown in the figure. So here this is product. So concentration of product at equilibrium we know. तो T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे P प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो 4 है और T1 टेम्परेचर पे 2 है. दिस इज द टाइम इन आवर. इफ T1 temperature is 2 times of T2 temperature, and delta G0 2 minus delta G0 1 is RT ln X, then the value of X is X की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. So delta G0 1 and delta G0 2 are standard Gibbs free energy change for the reaction at temperature T1 and T2 respectively. तो पहली चीज़ तो ये है क्योंकि डेल्टा एन जी ज़ीरो है, डेल्टा एन जी की वैल्यू ज़ीरो है, के पी के सी सब बराबर. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम मोल्स के टर्म्स में लिखें या कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखें या प्रेशर के टर्म्स में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई एम राइटिंग, क्योंकि अगर मान लो यहाँ डेल्टा एन जी ज़ीरो नहीं होता, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज व्हेन वी राइट डेल्टा जी नॉट फॉर अ गैसियस सब्सटेंस वी शुड राइट के पी. But here Kp, Kc both are equal. So we are writing in terms of concentration. There is no effect because Kp, Kc is equal to the equilibrium constant. तो ये एक important point है यहाँ पे. So when we are writing that time t is equal to 0 पे 1 लीटर में 6 मोल है, means initial concentration is 6. तो T1 टेम्परेचर पे अगर मैं इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन लिखूँ A का, so 6 minus x and this will be x. And they have given that the concentration of P is 4, x की वैल्यू 4 के बराबर है. So from there we got that the A का concentration at equilibrium will be 2. Equilibrium constant चाहे Kp लिखो Kc लिखो सब बराबर, so that is equal to concentration of product upon concentration of reactant.
4 divided by 2, that is equal to 2. Same way at temperature T2, starting from 6 mole per liter of A, again if we write that what is the concentration at equilibrium, equilibrium पे concentration क्या होगा, that is equal to 6 minus x dash, और ये x dash होगा. Since जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे T2 टेम्परेचर पे वो 2 है, मीन्स x डैश की वैल्यू 2 होगी. If I put here, then we'll get that 6 minus x dash is equal to 4. So concentration of product upon concentration of reactant, तो प्रोडक्ट के लिए वैल्यू है 2 और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 4 है, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1/2. राइट, सो हायर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, क्योंकि T1 इज हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाफ आ रही है. तो अगर कोई मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होता तो हम ये भी कह सकते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, so further moving in this, I can write that delta G02 is equal to, जरा आप ध्यान से देखो यहाँ पे इन्होंने ये लॉन के फॉर्म में दे रखा है, so 2.303 will not come, so delta G02 is minus RT2 ln, equilibrium constant at T2 temperature is half. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी RT2 ln 2. Delta G01 is equal to minus RT1 ln equilibrium constant, which is equal to 2. T2, they have given that T1 is 2 times of T2, right? So I can eliminate this T1. In place of T1, I can write 2 times of T2, right? So here we are getting that this value is equal to minus 2 RT2 ln 2. Now delta G0 minus delta G1, we can simplify this. This delta G02 is equal to RT2 ln 2 and delta G01, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2R T2 ln 2. On simplification, we are getting this as 3R T2 ln 2. RT2 ln 8, 2 to the power 3 is 8. So now if we compare RT2 ln x, तो x की value 8 आएगी. So this is also a doable question. Question number 12, it is from chemical equilibrium, answer will be 8.